آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ایران پر سائبر حملہ، عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ شدید متاثر۔ مودی حکومت ریلوے حادثات کو روکنے میں ناکام، پرینکا گاندھی کی مرکز پر تنقید۔ تلنگانہ نے کنڈاریڈی پلی میں منایا دسہرہ، آبائی موضاء پہلی بار آمد پر والہانہ استقبال۔ KCR نے تلنگانہ تحریک کے نام پر عوام کو دیا دھوکہ، سابق رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر رویندر نائک کا الزام۔ اور ساس بہو کی اجتماعی عصمت ریزی، آندھرا پردیش میں انسانیت سوز واقعہ۔ مشرقی وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایران ہفتے کے روز شدید سائبر حملوں کا شکار ہوا، جس نے ملک کی تقریباً 3 محکموں کو متاثر کیا اور اس کے جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل نے 1 اکتوبر کو ایران کی 200 میزائل حملے کے جواب میں شدید رد عمل دینے کا عزم کیا تھا، جبکہ غزہ تنازع کے باعث مغربی ایشیا میں کشیدگی لبنان تک پھیل چکی ہے۔ ایران کی سپریم سائبر اسپیس کونسل کے سابق سیکریٹری فیروز آبادی نے ایران انٹرنیشنل کو بتایا، ملک کی تینوں حکومتی شاخیں، عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ شدید سائبر حملوں کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کا ڈیٹا چوری کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایندھن کی تقسیم، بلدیاتی نیٹ ورکس، نقل و حمل کے نظام، بندرگاہوں اور دیگر شعبے بھی حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ ملک بھر میں مختلف شعبوں پر ہونے والے حملوں کی ایک طویل فہرست کا حصہ ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہفتے کو دسہرے کے موقع پر مغربی بنگال کے ملٹری اسٹیشن میں روایتی شستر پوجا کی۔ ہندوستانی فوج میں اہم تقریب قوم کی خود مختاری کے محافظوں کے طور پر ہتھیاروں کے احترام کی علامت ہے۔ وزیر دفاع نے کلش پوجا سے رسم کا آغاز کیا، اس کے بعد شستر پوجا اور گاڑیوں کی پوجا کی گئی۔ انہوں نے متعدد جدید فوجی ساز و سامان کی پوجا بھی کی، جن میں جدید ترین پیدل فوج، توپ خانہ اور مواصلاتی نظام، نقل و حرکت کے پلیٹ فارم اور ڈرون سسٹم شامل ہیں۔ پروگرام وزیر دفاع کی فوجیوں کے ساتھ گفتگو کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ راجناتھ سنگھ نے سرحد پر امن اور استحکام کو برقرار رکھنے میں مسلح افواج کی چوکسی اور اہم کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ دسہرہ برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے اور فوجیوں کو انسانی اقدار کا یکساں احترام ہے۔ تمل ناڈو کے چنئی سے تقریباً 46 کلومیٹر دور کاوارائی پیٹائی کے قریب ایک تیز رفتار ایکسپریس ٹرین اسٹیشنری مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ جمعے کی رات پیش آیا۔ ٹرین نمبر 12578 میسور دربھنگا ایکسپریس کاوارائی پیٹائی میں مال گاڑی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 19 مسافرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ چنئی گوڈور سیکشن میں اس حادثے کے باعث کم از کم 13 بوگیاں پٹریوں سے اتر گئی۔ اب تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بچاؤ اور راحت کاری کے کام فوری طور پر انجام دیے گئے۔ Stanley Hospital, and some were also moved to the Madras College, Medical College. How long it will take to clear this traffic? No, first priority is to treat the injured, which has already been done. Now, next priority is to take the passengers to Chennai, where a special train is waiting to take them to their respective destination, to Odisha, Andhra and Bihar, Jharkhand. And then parallelly we are also going to restore it as soon as possible. Already our accident relief train is on way, next station for Nari, so which is 6 kilometers away. So it is moving towards the site. So all the 4 lines are now blocked. So it may take approximately maybe 15-16 hours when we are able to clear the whole. So the driver minister had a word with you. What was the any sort of investigation here and when? Obviously, all high-level committee will inquire into the cause and find out what has actually happened. Should not have happened. Sir, did you speak with the railway minister? Yeah. I briefed him about the accident, and he inquired about the injured, and then he also inquired about the moving the passengers
to their destination. So we are making all the arrangement, including providing them free water, snacks and dinner also. Everything will be arranged. It is a कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत रेलवे हादसात को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है और इसी का नतीजा ये है कि गुज़िश्ता 4 महीनों में 55 रेलवे हादसात में कई लोग जान की बाजी हार गए और मुतादिद जख्मी हुए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, मुल्क में ट्रेन हादसे इस कदर आम हो गए हैं कि एक के बाद एक ट्रेन हादसात होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से ना तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों आम लोग खौफ और अफरा तफरी के पहियों पर चलने वाली ट्रेनों में अपनी जान हथेली पर लेकर सफ़र करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हुकूमत ने महफूज ट्रेन सफ़र की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के साथ एक बार फिर बालासोर उड़ीसा जैसा हादसा हुआ। महीनों से जारी ये रुझान कब रुकेगा, कब जवाबदेही तय होगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को अपने आबाई टाउन में दशहरा फेस्टिवल मनाया। रेवंत रेड्डी जैसे ही जिले नागर कर्नूल के अपने आबाई टाउन कोंडारेड्डीपल्ली पहुंचे, मुकामी आवाम ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जायज़ा हासिल करने के बाद वो पहली मरतबा अपने आबाई मौज़े पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मौज़े कोंडारेड्डीपल्ली में मॉडल ग्राम पंचायत की इमारत का इफ्तिताह भी अंजाम दिया, जिसकी तामीर पर 72 लाख रुपए का खर्च आया है और जो असरी सहूलियात से आरास्ता है। उन्होंने ग्राम पंचायत इमारत के अहाते में आम का एक पौधा भी लगाया। बादशाह ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों की तामीर का संग बुनियाद भी चीफ मिनिस्टर ने रखा, जिस पर 18 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इतवार 13 अक्टूबर को अपने हल्के इंतखाब कोडंगल का दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक अपने आबाई टाउन में दशहरा फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद वो हर साल दूसरे दिन कोडंगल का दौरा किया करते हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर इतवार को अपने रिहाइश गाह पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आवाम और पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा टी नागेश्वर राव और पी श्रीनिवास रेड्डी हफ्ते को ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म में अश्वारावपेट पाम ऑयल फैक्ट्री में 2.5 मेगावाट के बरखी प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी तामीर पर 36.5 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने तकरीर करते हुए कहा कि तेलंगाना में इंदिरम्मा राज्यम के बरसर इख्तिदार आने के बाद आवाम को दशहरा का ये एक तोहफा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि आइंदा 5 बरस के दौरान कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए आलूदगी के बगैर मज़ीद 20,000 मेगावाट बरखी की पैदावार के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई की पैदावार की भी हौसला अफजाई की जा रही है और इलाके अश्वारावपेट में 2 देहातों में तजुर्बाती तौर पर शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाएगा। दशहरे के मौके पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आवाम को हलफ दिलाया। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के हसन आबाद टाउन में ये हलफ दिलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। रियासती वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि तमाम को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए, शराब पी कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और हमें अपनी जान की हिफाजत के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाए बगैर खुद की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని మేము అందరం కలిసి ఈ రోజు నుండి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను పాటిస్తామని, మందు దాగి బండి నడపమని ప్రతిజ్ఞ చేస్తా ఉన్నాం। ఇది మన ప్రాణాలను మనం రక్షించుకోవడానికి, ఇతరులకు అపాయం కలగకుండా చూడడానికి, స్వీయ రక్షణకై ఈ ప్రతిజ్ఞ చేస్తా ఉన్నాం। జై బోలో అమ్మవార్ की। साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रविंद्र नायक ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के नाम पर समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया। रविंद्र नायक ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने
अपने दौर में रियासत को मकरूज कर दिया था और अब वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद्रशेखर राव ने कई कायदीन के सियासी मुस्तकबिल के साथ खेल खेला और अपने मकासद की तकमील के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। बीआरएस के सीनियर लीडर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से इन पर आयद करदा इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और वजाहत की कि वो क़तई तौर पर इन स्कूल्स के क़याम के मुखालिफ नहीं हैं। बीआरएस लीडर ने हफ्ते को ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर इनके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं कि वो इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर हकीकतन अक़ामती स्कूल्स के क़याम के मक़ासिद से वाकिफ़ नहीं हैं। बीआरएस हुकूमत ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत भर में बड़े पैमाने पर अक़ामती स्कूल्स का जाल फैलाया था। हल्के लोकसभा आदिलाबाद के बीजेपी रुकन जी नागेश ने कहा है कि हर किसी को तहजीब और रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इंद्रवली मंडल में हरकापुर तांडा में मुनक़िदा नवरात्रि तकारीब की इख्तितामी तकरीब में हिस्सा लेते हुए नागेश ने कहा कि त्योहारों के मौके पर इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम तहजीब और रिवायात को फरामोश न करें, जिसके ज़रिए हम मुस्तक़बिल की नस्लों को महज़ब बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तकरीब में बीजेपी के रियासती कायदीन ने भी शिरकत की, जिन्होंने रुकन पार्लियामेंट जी नागेश का खैर मुक़द्दम किया। दशहरा त्यौहार मनाने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों से आबाई मकामात को जाने वालों की तादाद में इजाफे के सबब सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और बाज़ मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुक़ीम आंध्राई अफराद अपनों में त्यौहार मनाने के लिए पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाते हैं, जिसके नतीजे में टोल प्लाजा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जाता है। शहर हैदराबाद के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने दशहरा त्यौहार के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि दशहरे का त्यौहार हिंदुस्तानी सक़ाफ़ती विरसे की अलामत है। बुराई पर अच्छाई की फ़तेह की अलामत ये दशहरा त्यौहार है। दशहरा त्यौहार से माशरे में दोस्ती, इत्तेहाद, अमन और अच्छे अखलाक को फ़रोग़ देना चाहिए। आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिरीन ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए आधार कार्ड दिखाना ख़वातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ नलगोंडा ज़िले के चिन्ना थम्मलागुडम गांव में बस को रोककर आधार कार्ड्स की जांच की जा रही थी, जिस पर बस में सवार दीगर ख़वातीन मुसाफिरीन ने एतराज़ किया, क्योंकि बस को रोकने पर सवाल उठाने पर बरहमी ज़ाहिर की गई थी। इन्होंने कहा, हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्ञार के इल्म में लाएंगे, तो हुक्काम ने अपना रवैया तब्दील कर दिया। सास और बहू की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक सत्यासाई ज़िले के चिल्लामत्तूर में नामालूम अफराद ने चाकू की नोक पर शर्मनाक हरकत की। बताया गया है कि रियासत कर्नाटक के बल्लारी से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान, जिनमें बेटा, बहू, सास और ससुर शामिल हैं, काम की तलाश में यहाँ पहुँचे थे। वो एक तामीराती इमारत के पास काम कर रहे थे और वहीं मुक़ीम थे। कल 4 नामालूम अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचे और उन्होंने सास और बहू की चाकू की नोक पर डरा धमका कर इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की। इस दौरान बीच बचाव के लिए आने पर मुलजिमीन ने बाप और बेटे को धमकाया और वहां से फरार हो गए। ईरान पर साइबर हमला, अदलिया मौक़नाना और इंतज़ामिया शदीद मुतासिर। मोदी हुकूमत रेलवे हादसात को रोकने में नाकाम, प्रियंका गांधी की मरकज़ पर तनकीद। तेलंगाना ने कुंडारेड्डीपल्ली में मनाया दशहरा, आबाई मौज़ा पहली बार आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के नाम पर अवाम को दिया धोखा, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रविंद्र नायक का इल्ज़ाम। और सास बहू की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी, आंध्र प्रदेश में इंसानियत सोज वाक़या।
یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔